Sonipat Haryana. Shefali ma'am is a skilled educator with a strong, decisive, and established teaching style. She has more than 21 years of teaching and research and administrative experience. She is involved in developing innovative practices in enhancing quality and administration of higher professional education. Having adequate experience in teaching and teachers training program and teachers training activities, she is involved in developing innovative practices in enhancing quality, administration, and higher education professional education. Having adequate experience in teaching, teachers training, education administration, and allied logistics, she has served as a various positions in university as a founder director of University Placement and Counseling Cell, UPACC, founder director of Women Studies Center, university coordinator, NAC, chairperson, Department of Hotel Management, university counselor and member, academic council, member, academic advisory committee, and member of various other committees. Presently, she is serving as a director in charge, as I have already told you, HRDC, Associate Dean, Student Welfare, and Coordinator, National Resource Center in Philosophy at BPS Women University, which is a state university for women. And the most unique thing is that this is the first women university in North India, which is located in Haryana. With her strong leadership, communication, student and institutional advocacy skill, she has organized more than 175 training programs and conferences for teachers in higher education and more than 75 skills for study development and training and placement programs for the rural women students. She is the paper coordinator of 2 subjects in discipline of management, international business operations, and development of management thoughts, principle and type. In EPG Pathshala, a project of Memorandum of the Ministry of Education under SWAM program, she has developed 80 modules and 29 e-content. Very huge, I think so. And it's EPG Pathshala. She has developed MOOCs programs and subject of philosophy under annual refresher program in teaching Memorandum of Understanding of Government of India. She has, to her credit, for 4 books published with the national and international publisher and 50 research papers published and presented in national and international journals and conferences, seminars, and more than 250 invited talks in conferences, seminars, and faculty development programs. She has affiliation with many prestigious associations. She has been awarded with Utkrisht Shikshak Samman in 2021 by ICS Sonipat Guru Dronacharya Award in 2018 and Sri Naran Sanskrit Chetna Nyas prestigious President Award by Indian Hospitality Congress 2015 for distinguished contribution in the field of hospitality management. Teacher Excellence Award in 2014 by Confederation of Education Excellence Conference, conferred by Padam Bhushan Professor Yashpal for outstanding services in higher education, and Distinguished Services Award 2008 by SDM Group of Institutions for excellence in teaching. Dear participants, if you wish to know much more about the ma'am, you can visit to the website of the institute and you can know very much more about madam. Without taking much more time, ma'am, I would like to invite to discuss you on the topic that is academic leadership. Ma'am, now mic over to you for discussion of the academic lowers. Thank you, ma'am. Thank you so very much, Professor Azharji, for introducing in such an elaborative way to all the participants. And I extend my greetings to you, Dr. Faiza, and all the participants of this NEP from Bhagat Singh Mahila Vishwavidyalaya from Haryana. And I welcome all the participants, those who have joined here in this NEP sensitization program, that they are here. And they are there to learn more about the implementation of the NEP policy that is being implemented throughout the country, and it's becoming very crucial for each and every one of us to understand how to implement this policy.
As a part of this implementation, it is very much important to learn about the 8 pillars that has been defined by the UGC in this NEP 2020. And one of the important thing is, which we will be discussing today, and one of the important pillar, I would say, on which this implementation of the effective implementation in the spirit rest is the academic leadership and governance and management. Ji, Abhay Kumar ji, very good evening. So let us discuss about it. What role does the academic leaders play, or how the governance and the management of higher education institutions are taking place in our country? There are numerous challenges that we are facing, and the challenges that we have been facing throughout, because we are seeing that this policy has come after the 40 years lag period, and the way the India is developing, the demographic dividend is increasing, and we are expecting to be one of the most prosperous country in the world and emerging to be the superpower of the world. It becomes very important that the students, those who are passing out from our higher education institutions particularly, they are more skilled, they are more employable, and they are more worthy. And they also are not only able to get the employment in the local areas, but as well as at the national and international arenas. So for the development of all these things, it is also equally important that we should develop our academic institutions with a vision. We plan them strategically and move ahead with a future vision. We have to move in a sense by keeping what is the vision, what should be the vision for our country, where we have to take our country as we want our students to be, what things are growing, what is the future world, and we have to produce such kind of courses, we have to increase that kind of the things, and we have to strategically move ahead. So for that, we need to have a very good planning. And for all those planning, we need a team, and the team of every department, every faculty, every institution is headed by certain leaders. And that leaders can be in the form of the head of the department, that can be in the form of the dean of the faculties, that can be the dean of the schools, and that can be the academic administrative leaders, even the vice chancellors or the principals in the higher education, or the directors in the higher education institutions. So while we are planning for the effective implementation of all these things, one thing that we need to be very clear in our approach is to be futuristic, that we have to move towards a time, and that time has to be in the sense that time has to be kept in the mind for another 20 to 30 years. And then we have to think about what kind of the things we have to move, what kind of the things we have to influence, what kind of intellectual properties, what kind of intellect that we have to produce in our country, what kind of administrative aspects we need to take into the consideration in our academic institution. So if we talk about the academic leaders, how do we define it? What is academic leadership? Any idea? Anything that you think what academic leadership is? You can keep your all these open. You can keep your cameras open. You can unmute yourself to answer. This is the beauty of the Google Meet, that you can unmute yourself at any moment of time. Ji, Dr. Shailendra ji. Unmute कर लीजिए. Unmute. Academic leadership से आप क्या समझते हैं कि हमें क्या academic leadership में हमें करना है? क्या करना चाहिए? दिखाओ. जी. Academic leadership का मतलब होता है, in the simple terms, if we define it as a process. It is not like this a one-day process. It is a process gradually over the period of years, where we have to
do a kind of guiding, directing. We have to influence how the intellectual things have to move on, how the administrative aspects of the have to move on in any educational institution, keeping in mind the common goal that we want to achieve as an academic institution, and then also to prepare an environment which is conducive to learning, research, and overall academic excellence. This is what the academic leadership is all about. Let me share my screen with all of you. I hope I'm visible. Yes, more visible. And my presentation is also visible to you? Yes. Yes, ma'am. धन्यवाद. Thank you. So academic leadership की अगर हम बात करते हैं तो जैसा आप सब जानते हैं कि लीडर का काम होता है गाइड करना, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसके अंदर सब लोग एज अ पार्ट ऑफ टीम काम कर सके, और हम सारे के सारे जितने इंस्टीट्यूशंस होती हैं इन सबका एक गोल होता है. इवन इफ वी टॉक अबाउट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हमारा एक कॉमन गोल, एक जनरल गोल ये है कि हमने सब लोगों को एजुकेट करना है. वी हैव टू एजुकेट देम, provide them the enough skills, provide them the enough education, formal education, कि जिससे उनका उनका जो फ्यूचर है वो उनको एक करियर मिल सके, उनका एक डिसेंट लाइफस्टाइल हो सके, उनको अच्छे या बुरे की समझ आ सके. तो ये सब करना हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक ध्येय है, एक ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का बेसिकली यही होता है. इसलिए ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो वो ये होगा ही. पर इसके साथ साथ हर इंस्टीट्यूशन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर खोला जाता है, राइट? हर इंस्टीट्यूशन अपने आप में एक सोच के एक विजन के साथ बनाया जाता है. जैसे कि आई कम फ्रॉम एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन which is specifically for the women, that too into the rural interior of Haryana. So if I come from a women university, so we have a specific goal to empower the women through the education. तो इसीलिए इस oppressed area के अंदर जहां पर ये एक section जो था वो marginalized है, वो oppressed है, उनके लिए ये institution खोला गया. इसी तरह से आप देखिएगा जितनी भी यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो ट्राइबल एरियाज में है, वो रिमोट एरियाज में है, वो सारी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले जाते हैं उनका एक पर्टिकुलर एम होता है. एक पर्टिकुलर एरिया को, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को, या पर्टिकुलर रीजन को, या पर्टिकुलर जेंडर को, या पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो एड्रेस करते हैं, या उस पर्टिकुलर एरिया का या फिर वहां के चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए उनको खोला जाता है. तो अधिकतर सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अपना एक गोल होता है. तो उस गोल को अचीव करने के लिए, उस विजन को अचीव करने के लिए जो लीडर का जो काम होता है वो ये होता है कि उस लीडर को, मतलब उस गोल को अचीव करने के लिए उसने सब कुछ उसी के लिए ही करना होता है. सो दैट इज बेसिकली व्हाट द एकेडमिक लीडरशिप इज ऑल अबाउट. व्हाई डू वी नीड गुड एकेडमिक लीडरशिप? We all are the part of the educational institutions. We know कि हमें एक अगर अच्छा लीडर मिलता है तो एक अच्छा कल्चर इंस्टिल हो जाता है. हमारे यहाँ पर एजुकेशनल जो लीडरशिप जो होता है हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो टेन्योर बेस्ड होता है. 3 years, 5 years या फिर रोटेशनल बेसिस पे होता है, एक्सेप्ट और जो ट्रांसफरेबल बेसिस पे होता है कि कुछ टाइम के बाद ट्रांसफर हो जाती है. तो आपने भी अनुभव किया होगा कि whenever we have some good people, those who have a vision, those who are goal oriented, तो उस वक्त जो होता है एक कल्चर में एक अलग से बदलाव आ जाता है. So to instill that culture, we need to have a good academic leadership where they should have who can create the culture, who can shape the future, who can instill the values, who can create and inculcate the values of the institution. वो सारी चीजें करने के लिए एक academic leadership होना बहुत जरूरी है. Then to improve upon the quality, particularly education. Education की अगर हम overall quality की बात करते हैं तो teaching का, research का, learning का जो environment हम create करते हैं, जो quality हम create करते हैं, उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि एक अच्छी academic leadership होनी चाहिए for the institution. Then आज का जो दौर है वो innovation का है.
वो अडेप्टेबिलिटी का है, how innovative we are. We are talking about the learning organizations. तो जब हम learning organizations की बात कर रहे हैं तो we have to constantly grow, we have to constantly innovate. तो innovation ऐसा नहीं होता है कि lethargism से आ जाती है या फिर एक routine से आती है. इनोवेशन करने के लिए बहुत सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, एक इस तरह की एम्बियंस क्रिएट करनी पड़ती है, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं, तब जाके एक क्रिएटिविटी, एक इनोवेशन जो है वो एक कांस्टेंट फेज बनता है और ऑर्गेनाइजेशंस जो बन जाती हैं वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं. तो ये जरूरी है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कन्वर्ट करें, जहां पर जो कल्चर है वो एवर इवॉल्विंग हो, वो एवर इनोवेटिंग हो. अगर आप देखें, इफ वी टॉक अबाउट द टॉप इंस्टीट्यूशंस ऑफ द रिसर्च, अगर हम आईसेट की बात करते हैं, आईआईएससी की बात करते हैं, आईएम्स की बात करते हैं, या टॉप आईआईटीज की बात करते हैं, एम्स की बात करते हैं, तो इन सारे इंस्टीट्यूशन के अंदर और बाकी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो फर्क आता है वो आता है उनके कल्चर का. They have evolved with such a culture, they have instilled that culture, they have created that culture, और उसके अंदर जो उन्होंने इंस्टॉल किया है वो किए हैं उसकी वैल्यूज, एंड दे हैव सस्टेन्ड दैट वैल्यूज. और वहां पे सस्टेनेबिलिटी किसकी है? वहां पे सस्टेनेबिलिटी है क्रिएटिविटी की, इनोवेशन की. दे रिवॉर्ड दैट इनोवेशन, दे रिवॉर्ड दैट क्रिएटिविटी, दे गिव दैट वैल्यू टू दैट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. तो यही इंस्टीट्यूशंस, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस है, उसके अंदर भी हमें ये सारी चीजें क्रिएट करनी है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे एकेडमिक लीडर्स हो. अब ये इन सब चीजों के साथ साथ आजकल एक और जरूरत पड़ गई है, वो ये है कि जैसे जैसे ये वर्ल्ड जो है वो श्रिंक करता चला जा रहा है इनटू द ग्लोबल विलेज. जो वर्ल्ड है, अब देखिए जो मेरे पीछे बैकड्रॉप लगा रखा है, ये एक समुद्र को दिखा रहा है जिसके अंदर ग्लेशियर जो है वो पिघल गए हैं, और स्पीशीज आप देखिए इनके बचने का, सर्वाइवल का, अगर हम चांस देखें पोलर बीट का, तो कितना रह जाता है अगर ग्लेशियर्स पिघल जाए, आइस ही ना हो, तो इनकी ये स्पीशीज एक्सटेंड हो जाएगी. एंड दैट, ये सारा जो पोल्यूशन आप देख पा रहे हैं, ये सारा पोल्यूशन हम ही लोगों ने क्रिएट किया है. पर ऐसा नहीं है कि इंडिया जब पोल्यूशन क्रिएट करता है तो आर्टिक ओशन पे या एंटार्क्टिक ओशन पे उसका असर नहीं पड़ता. All these things that we are flooding into the sea, it travels from one part of the world to the another part of the world. तो जितना भी ये ग्लोबल इम्पैक्ट आ रहा है, ये हर जगह पे प्रोड्यूस होता है. इस तरह से जो हमने ट्रेड एक्टिविटीज इंक्रीज करती हैं, वो भी ग्लोबल लेवल पे हो गई है. आजकल आप कोई चीज ऐसी नहीं है जो घर बैठे ऑर्डर करें और आपके पास ना आ सकती हो. आपके अगर बच्चे या फैमिली कोई बाहर है, या आप यहाँ आए हुए हैं बाहर से, तो you can be, you can send them gifts, you can send them bouquets, you can send them anything, whichever you want. यहाँ पे रहते हुए भी, इंडिया में रहते हुए भी, या अब्रॉड में रहते हुए भी इंडिया के अंदर आपके रिलेटिव्स को मिल जाता है. So all these things have reduced this world, जहाँ पे बाउंड्रीज अब मैटर नहीं करती है. तो हमने जब बाउंड्रीज को मैटर करना बंद करवा दिया है, तो इसी तरह से जो अब हमारी एजुकेशन का स्ट्रक्चर हो गया है, जब ट्रेड इतना इन्फ्लुएंस हो गया है, एग्रीकल्चर इतना इन्फ्लुएंस हो गया है, लाइफस्टाइल्स के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस आ गया है, तो एजुकेशन भी एक ऐसा कोई जरिया नहीं रह गई या कोई एरिया नहीं रह गया जिसके ऊपर इस ग्लोबलाइजेशन का असर ना हो. तो जब ग्लोबलाइजेशन ने हर इम्पैक्ट कर रहा है, और इस इम्पैक्ट के अंदर जो एजुकेशन है, दैट ऑल्सो इज डिफाइनिंग एंड इज बिकमिंग ग्लोबल नाउ. अब वो भी एक ग्लोबल रिकॉग्निशन के ऊपर आ रही है. तो जब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज के अंदर हैं कि हम अपनी एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और हम अपनी सारी चीजों को आगे निकाल रहे हैं, बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि इस फील्ड को भी, इस एरिया को भी, इस सेक्टर को भी ग्लोबल पैरामीटर्स और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर रेज किया जाए. और ये रेपुटेशन क्रिएट करनी भी जिम्मेवारी बनती है एकेडमिक लीडर्स की. तो इसीलिए जो एकेडमिक लीडर्स हैं, they play a very crucial role in making and sustaining the academic institution. उसके लिए बहुत जरूरत है. इसीलिए इस NEP 2020 में, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात हम सब लोग कर रहे हैं, आज जिसको चर्चा करने के लिए आज हम जिस विषय के ऊपर बैठे हुए हैं, उसके अंदर ये जरूरी है
कि जितने भी टीचर्स हैं जो कि फ्यूचर के एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या एट प्रेजेंट भी एकेडमिक लीडर्स हैं, इन सब लोगों को इसके बारे में बताया जाए कि किस तरह से आपके रोल के अंदर चेंजेस हैं या किस तरह का रोल भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और या फिर आपको किस तरह से प्रिपेयर होना है टू एज्यूम दीज रोल्स इन द फ्यूचर. So that is why this topic is kept as one of the important pillars in the NEP to be discussed in the training programs by the MMTTCs with all the teachers. तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है. बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं किसी भी लीडर के आगे. वो बहुत तरह के चैलेंजेस जो होते हैं, बहुत तरह के कंस्ट्रेंट्स जो है वो फेस करता है. एक तो सबसे पहले हम सब जानते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है. उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत सबको काम करना होता है. अब जो फ्रेमवर्क हमारे पास है, जैसे यूजीसी ने जो हमारी अपॉइंटमेंट की कंडीशंस रखी है या प्रमोशन की कंडीशंस रखी है या फिर ओपनिंग अप ऑफ द इंस्टीट्यूशन की रखी है, रिकॉग्नाइजेशन की रखी हुई है या फिर 12B का एफिलिएशन लेने की रखी है, तो और दीज थिंग्स जिसके थ्रू हमारे कोई भी रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं for all the technical courses, for all the professional courses, वो हमें करने मैंडेटरी होते हैं. उस फ्रेमवर्क में, उन क्वालिटी पैरामीटर्स में हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को चलना होता है. और ये जो रेगुलेटरी पैरामीटर्स है, इसको मीट आउट करते रहे हम, ये ड्यूटी होती है लीडर की. देन आजकल बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे बदलाव जो आ रहे हैं, इन बदलाव के कारण जो कि मेजॉरिटी तौर पे जो बदलाव आ रहा है वो आ रहा है डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर. इंडिया इज गेटिंग यंगर. आप जानते हैं कि इंडिया का जो प्रेजेंट एज है वो काफी रिड्यूस हो गया है. वी आर गेटिंग यंगर एंड यंगर डे बाय डे. एंड सेकेंडली, we are the world largest population. If we are young and the largest population in the world, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सबसे ज्यादा वर्कफोर्स अवेलेबल है वर्ल्ड की. वी आर हैविंग द हाईएस्ट वर्कफोर्स इन द वर्ल्ड. तो जब हमारे पास ये डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं और उनकी जरूरतें बदल रही हैं, जिस तरह से आज का परिवेश बदलता चला जा रहा है, जिस तरह से आज सिनेरियो बदलता चला जा रहा है, आपने देखा होगा कि अब इंडिया के अंदर भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंक्रीज हो गए हैं, बहुत इम्प्रूव हो गए हैं. यहाँ पर भी हम बहुत तरह की टेक्नोलॉजीज ले आए हैं. वर्ल्ड ओवर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, डेली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं. तो ये जब चीजें चल रही हैं और नए से नई चीजें आ रही हैं, तो इन नए के बदलाव को सीखने के लिए और निरंतर उसके अंदर आगे बढ़ने के लिए हमें हमारे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना होगा. हमें इस यंग जनरेशन को, जो कि लार्जेस्ट वर्क फोर्स है वर्ल्ड की, इसको प्रिपेयर करना होगा टू बी मोर स्किल्ड, टू बी मोर एम्प्लॉयबल एंड टू बी मोर फ्यूचरिस्टिक. तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास आ रहा है, ये जो वेरिएशंस आ रही हैं, इसकी डिमांड भी अलग तरह की है. इसलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे बार बार जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात की जा रही है, वो बात की जा रही है कौशल निर्माण की, स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है. तो जो स्किल डेवलपमेंट है वो हम इसमें चाह रहे हैं कि ये एक फॉस्टर कर सके, कोई भी एकेडमिक लीडर जो है वो इसको सोच सके, इसको फॉस्टर कर सके, इसको लगा सके, इसको इम्प्लीमेंट कर सके, इसको और बेहतरीन बना सके, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ देश में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल के ऊपर अपने आप को रिकॉग्नाइज करा सके. तो ये एक कंस्ट्रेंट बहुत बड़ा है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी लीडर के लिए कि हाउ दे हैव टू प्रिपेयर दैट डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो कि हमारे स्टूडेंट्स का आजकल है, जो हमारी पॉपुलेशन का है. इसके लिए हमें चाहिए, देखिए जब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो जब प्लेसमेंट कंपनीज हमारे यहाँ आती हैं और जब हमारी उनके साथ इंटरेक्शन होती है, तो कुछ तरह के चैलेंजेस उन्होंने हम सबके आगे रखे हैं. वो ये कहते हैं कि हमारे पास नौकरियों की कमी नहीं है, वी हैव प्लेंटी ऑफ जॉब्स, बट यू डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स टू ऑफर टू अस. पर आपके जो बच्चे हैं वो हमारे हिसाब से तैयार नहीं है. हम जो कर रहे हैं वो आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद, अभी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं. इलेक्ट्रिक कार्स आने वाली जनरेशन का फ्यूचर है. अब इसके ऊपर बनना शुरू हो गया, धीरे धीरे इसके अंदर इंप्रूवमेंट आती चली जाएगी एंड इट विल गेट मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू. अभी आप जानते होंगे डीजल कार की मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली सभी जो कार्स हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग है, उन्होंने बंद कर दी है.
तो ये इसलिए बंद करी है बिकॉज द डीजल इज गेटिंग डिक्रीज्ड, पेट्रोलियम रिजर्व जो है हमारे पास बहुत समय के लिए नहीं बचे हैं, हार्डली वी हैव द पेट्रोलियम रिजर्व्स फॉर अनदर 5 to 10 years. So that is why the diesel cars have shut down, and in the future the petroleum cars will also be shut down. तो हमारे पास जो फ्यूचर रह जाएगा वो होगा बायोफ्यूल्स का, जिसमें से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है. तो अब जो ट्रेडिशनल जो काम करने के तरीके थे या जो ट्रेडिशनल स्किल्स थे, चाहे वो मैकेनिकल थे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल थे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, और चाहे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के थे, चाहे रोड्स के थे, अब चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, तो इन सारी चीजों से हटकर नई चीजें जब आएंगी तो उसके लिए नई डिमांड्स होंगी. तो जब नई डिमांड होंगी तो इसका मतलब ये है कि नए स्किल्स की जरूरत होगी. ट्रेडिशनल वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स विल बी ऑब्सोलीट, सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर देम. अगर हमें उन्हें प्रिपेयर करना है तो ये भी जरूरत पड़ती है हमारी, तो ये भी हमारी जरूरत पड़ती है कि हम नए से नई लैब्स, नए से नए एक्सपेरिमेंट्स, नए से नई चीजें हम अपने बच्चों को सिखाएं. जब इस नई चीजों को बच्चों को सिखाने के लिए हमें करना है, पर हम पढ़ा क्या रहे हैं, बहुत पुराना. दिस इज व्हाट द कंपनीज वर टेलिंग अस कि हम फ्यूचर ओरिएंटेड है और आपके यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो बहुत पुअर है. अधिकतर it's not only that we are talking about the women university, BPS women university, it's happening with almost all the educational institutions. They told us कि हम जहां पर भी जाते हैं वहां syllabus is too outdated, too much obsolete. हम उन बच्चों को उस एकेडमिक लेवल के ऊपर यहाँ पर जॉब नहीं दे सकते, हमें पहले उन्हें ट्रेन करना पड़ता है. That is why the concept of finishing schools has emerged in our country, कि ट्रेनिंग जहां पे दी जा रही है. इसलिए ये जरूरी है कि जो हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, जो हमारे पास पैसा आ रहा है, पहले तो लिमिटेड आता है, हर एक के पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज हर एक के पास लिमिटेड होते हैं. इकोनॉमिक्स हमेशा यही कहती है देयर आर नेवर टू मच ऑफ रिसोर्सेज जो कि सभी के लिए पूरे हो या फिर अधिक पड़े. रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, हमें उन लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में ही मैनेज करना होता है. इसी तरह से हर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के पास फाइनेंसेस भी लिमिटेड है, बट इतने कम नहीं है हमारे देश के पास. हमारे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास फाइनेंस इतना कम नहीं है कि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें. But what my observation and experience over the last 22 years in the educational institutions has been is that we are not optimally utilizing it. We do not optimally utilize it. अभी तक हमने देश की तकरीबन 75 साल हो गए आजादी को भी, हमने अपनी एजुकेशन को इतना सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं बनाया है, पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन को. देखिए, स्कूल एजुकेशन तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी भी है और गवर्नमेंट ले भी रही है, पर हायर एजुकेशन जो है अप टू PhD गवर्नमेंट हर एक के खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकती, वेयर वी हैव सच अ लार्ज पॉपुलेशन टू सस्टेन एंड विद द लिमिटेड रिसोर्सेज. क्योंकि हर देश के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, चाहे वो फाइनेंसेस की बात करें, चाहे वो अदर रिसोर्सेज की भी बात करें. और आप ये देखिए कि जो हमारे देश के अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने खरबों रुपया खर्च किया है, वो केवल 35% यूटिलाइज होता है. रेस्ट ऑफ द टाइम इट्स लाइंग आइडल, खाली पड़ा हुआ है. We cannot afford to underutilize it. It's not even utilized up to 60%, 70% और 80%. हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 100% यूटिलाइज कर सकते हैं. ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी चीज है जिसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो सकता है, पर हमने उसे अंडर यूटिलाइज कर रखा है. और अंडर यूटिलाइजेशन भी कितना कि वी आर ओनली यूटिलाइजिंग 35% ऑफ इट. सो दैट मीन्स कि हमने जितना पैसा अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने में लगाया, उसको ऑप्टिमली अनयूटिलाइज किया हमने. तो वी नीड टू रीथिंक कि कहां पर हमने गड़बड़ कर दी. आजकल हम री इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजों को री इंजीनियर, तो रीथिंकिंग की भी जरूरत है. इसी तरह से हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी री इंजीनियरिंग करने की बहुत जरूरत है. वी हैव टू कम टू अ पॉइंट वेयर वी हैव टू थिंक where we are underutilizing, where we are overutilizing, and where we are not at all utilizing the things. So we have to become more rational in thinking about how we have to meet out our financial constraint, and that is one of the very big responsibility of any academic leader. ये सबसे बड़ी जरूरत है एक academic leader की, क्योंकि जो टीम होती है उसका जो डिसीजन है वो उसके ऊपर रेस्ट करता है. फाइनल अप्रूवल हमारे यहाँ पर जो ग्रांटिंग अथॉरिटीज जितनी भी होती हैं, उनका यहाँ पर विजनरी होना, फाइनेंसेस को मैनेज करने की समझ होना, ये बहुत जरूरी है. ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है
जो कि किसी भी एकेडमिक लीडर के अंदर होनी चाहिए, और उसको ये सारे कंस्ट्रेंट और ये चैलेंजेस फेस करने ही होते हैं। इसलिए आजकल अगर आप बात कर रहे होंगे तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप लोग ये देख भी रहे होंगे कि हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली बात रखी गई है कि हर बच्चे को फाइनेंशियल लिटरेसी और लीगल लिटरेसी, ये दो चीजें तो जरूर सिखानी चाहिए। मैं तो कहती हूँ 3 लिटरेसी जरूर देनी चाहिए। एक तो कंप्यूटर लिटरेसी, हाउ टू यूज द कंप्यूटर टूल्स एंड टेक्निक्स और किस तरह से प्रोग्रामिंग हो, इसलिए कोडिंग तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, स्कूल लेवल पे कर दी गई है, ये हमारी प्रॉब्लम खत्म होती है। दूसरा ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी, हम बड़े हो जाते हैं, हमारे यहाँ पर एक ऐसा इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है, इवन जो फैमिली स्ट्रक्चर है, वो भी इस तरह का है कि हम बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं देते हैं। जब तक पेरेंट्स हैं तब तक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हम बच्चों को नहीं देते। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को छोटी सी उम्र के अंदर पैसा देकर उन्हें खर्च करना, उन्हें सेविंग, इस तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएं, हाउ टू ग्रो द मनी, हाउ टू सेव द मनी, हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, हाउ टू यूटिलाइज द मनी। ये जो एक स्किल है, ये हर बच्चे को सिखानी चाहिए, और ये बात की भी जा रही है उसके अंदर, एनईपी के अंदर खास तौर पे एक बात रखी गई है। इसलिए जब हम लीडर्स की बात करते हैं, जब हम डिसीजन मेकर्स की बात करते हैं, लीडर्स कौन होते हैं? दे आर अल्टीमेटली द डिसीजन मेकर्स। उनके रोल्स चाहे फैमिली में हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, इट विल रिमेन द सेम, टू टेक द गुड डिसीजंस। जितने अच्छे और बेहतरीन डिसीजन कोई लीडर ले पाएगा, उतना ही एबल लीडर वो बन पाएगा। जितने पूर्ण वो डिसीजंस लेगा, उतना ही नाकामयाब लीडर बनेगा वो। पर इसके लिए जरूरी है कि हम इसके ऊपर ट्रेनिंग दें, हाउ टू improve the financial and how to learn the finances, how to manage the finances, ये स्किल सिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत तरह के स्टाइल्स हैं लीडरशिप के, बहुत तरह की चीजें हैं, सही बात है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने और सिखाने की बातें जो है वो एकेडमिक लीडर के लिए बहुत जरूरी है। उनकी भी इस तरह की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसी तरह की ट्रेनिंग हर टीचर की जरूरी है, ताकि वो कल के लिए एक अच्छा एकेडमिक लीडर बन सके। बहुत तरह के लीडरशिप स्टाइल्स हैं। कुछ लीडरशिप स्टाइल्स को हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। एक है ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल। ट्रांसफॉर्मेशनल काइंड ऑफ लीडरशिप इज दैट टू इंस्पायर एंड मोटिवेट द फॉलोअर्स टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। दैट मीन्स वो टास्क देते हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशन करने आते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग तरह के लीडर्स, अगर आपका एक्सपीरियंस रहा हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का या वर्किंग का, तो आपने देखा होगा अलग अलग तरह के जो लीडर्स होते हैं उनका अलग अलग वर्किंग स्टाइल होता है, और उन अलग अलग वर्किंग स्टाइल के तहत वो कुछ लोग तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बहुत मोटिवेट कर देते हैं, एक बदलाव ले आते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर चीजें बदलने लगती हैं, दूसरी दिशा में चलने लगती है। कुछ इस तरह के होते हैं जो टास्क के ऊपर ओरिएंटेड होते हैं, वो फोकस्ड होते हैं, और वो पनिशमेंट और रिवॉर्ड को फेवर करते हैं कि अगर किसी ने अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड कर दो, अगर किसी ने बुरा काम किया तो पनिश कर दो। तो इस तरह का भी उनका स्टाइल होता है। तो वो ट्रांजैक्शनल लीडर्स होते हैं। एक तरह के होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव वर्क की बात करते हैं, जो प्रायोरिटाइज करते हैं नीड्स ऑफ अदर्स को और एम्फेसाइज करते हैं कोलैबोरेशंस को। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप, जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो शेयर करते हैं, दे मेक अ टीम, और ये अधिकतर तब चलता है जहां पर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल ग्रुप होता है। ये चीजें वहां चल सकती है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप वहां चलता है जहां पे सेल्फ रिस्पॉन्सिबल टीम्स नहीं होती है, वहां पर ये सारी चीजें आती हैं। जहां पर बहुत एस्टेब्लिश चीजें होती हैं, वहां पर कोलैबोरेटिव लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। और हर तरह की लीडरशिप की अपनी सिग्निफिकेंस है, अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी ही तरह का इनका एक जो रोल है वो इनको प्ले करना पड़ता है। देन अगर हम बात करें कि किस तरह की इवोल्यूशन चल रही है हमारे इस एकेडमिक नई सेंचुरी के अंदर, और वो किस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सारी चीजों को लेकर, इन सारी चीजों को चलने से पहले कि किस तरह का 21st सेंचुरी इवॉल्व कर रहा है, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारी जो गवर्नेंस है वो किस तरह की है। देखिए, जो हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर को लेकर, पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें,
तो दो ही तरह के इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, एक होते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और दूसरे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब एक तीसरी अप्रोच धीरे धीरे गवर्नमेंट कर रही है और वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल के ऊपर काम कर रही है। तो जनरली पर अभी तक एज फार एज बहुत ज्यादा नहीं है वो इस तरह के जो स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर खड़े हुए। दो ही तरह के बेसिकली स्ट्रक्चर्स हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। अगर हम पब्लिक रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो वी नो दैट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, जहां पर डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम है। डिसीजन मेकिंग में चाहे वो एकेडमिक पॉलिसीज की हम बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें या फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात करें, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। हर जगह पे अपना एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जो कि एज कंपेयर टू जो प्राइवेट है वहां पर डिसीजन मेकिंग इज वेरी क्विक। बट यहाँ पर जो हायरार्की हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में चलती है वो या तो यूनिवर्सिटी सीनेट होती है, हमारे पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, सीनेट नहीं होगी तो कोर्ट होगा कहीं पर, देन एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एकेडमिक काउंसिल है, बहुत तरह की कमेटीज है उनके नीचे जो कि पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में काम आती हैं। पर्टिकुलरली इसका जो काम है क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, वो काम दिया गया है IQAC का, जो कि सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। दो तरह की मैनेजमेंट हमें यहाँ पर करनी होती है किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर। वो होती है हमारी या तो एक तो होता है हमारा ऑपरेशनल, मींस डे टू डे जो रूटीन की हमारी एक्टिविटीज होती हैं उसका मैनेजमेंट करना होता है, और दूसरा होता है हमारा जिसकी हमें मैनेजमेंट करनी होती है वो होती है हमारी फंडिंग का, मतलब स्लाइटली मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो हमें करना होता है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के अंदर हमें अपना एक विजन लेकर चलना होता है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, what is our goal, why we are here as an academic institution and where we want to go। तो ये एक जरूरत है एकेडमिक लीडर की कि वो प्लान आउट करे, एक विजन डॉक्यूमेंट हो हमारे इंस्टीट्यूशन का, और उस विजन डॉक्यूमेंट के तहत हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ हो, उसी के हिसाब से उसका रिसोर्स एलोकेशन हो, उसी के हिसाब से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उसी के हिसाब से उसकी बजटिंग हो। ये बहुत आसान हो जाता है जब हमारे पास एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है और एक विजन होता है। उस विजन के तहत हमें ये डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है कि हमें किस तरह से बजट को एलोकेट करना है, किस तरह से हमें अपने जो एक्सपेंसेस है उसको मैनेज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हमें ये पता होगा। अगर हमारे पास विजन क्लियर है कि हमें कितने एकेडमिक, किस तरह के हमें डिपार्टमेंट्स खोलने हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या होना चाहिए, किस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सर्विसेज हमें उसमें प्रोवाइड करनी है, बजट कितना देना है, किस तरह से रिसोर्स को एलोकेट करना है, सो दैट विजन प्रोवाइड अस not only help us in the long term achievement of the goals but as well as the short term achievement of the goals। तो उस सारी चीजों को करना बहुत जरूरी है और ये प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी लीडर का। और वो लीडर चाहे वो डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर हो, चाहे डीन के तौर पे हो, और वो चाहे हाईएस्ट अथॉरिटी के तौर पे हो, ये बहुत जरूरी है। आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है, जिस तरह से वर्ल्ड ओवर कोलैबोरेशन चल रही है, ये जरूरी बन जाता है एजुकेशनल सेक्टर के लिए भी कि वो भी इस तरह की इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन करे, एकेडमिया कोलैबोरेशन करे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोलैबोरेशन करे, ताकि और दूसरा जो इस कोलैबोरेशन से फायदा हो वो होना चाहिए एक तो फंड्स का, दूसरा होना चाहिए क्वालिटी का, तीसरा होना चाहिए टेक्नोलॉजी का। तो ये तीन बेसिक पैरामीटर्स होने चाहिए किसी भी कोलैबोरेशन का, और ये सारी कोलैबोरेशंस करने की बहुत जरूरत है आज के दौर पे जब हम इस एकेडमिक लीड, और ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है ये बनती है एकेडमिक लीडर्स। तो जितने चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, जैसे कि हमारे बहुत सारे जो गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो हमारी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हमने बनाए वो बहुत पुराने हैं। अगर हम देखें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, देखिए क्या होता है यूजुअली स्टेट यूनिवर्सिटीज में तो इस तरह से होता है कि किसी एक यूनिवर्सिटी ने बनाया और बाकी सबकी जगह पे वो अडॉप्शन हो जाती है कि सेम रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है वो सेम पॉलिसीज सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे हो जाएगा। या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है
वो हमें डायरेक्शंस दे देती है कि ऐसे करना होगा, वो पॉलिसीज बना देती है। और ये पॉलिसीज 20-20, 30-30 साल ऑर्डिनेंस पुराने होते चले जाते हैं, इनके अंदर अमेंडमेंट्स तो आती है, पर मेजॉरिटी तौर के ऊपर हम इसे एक डिकेड के बाद या फिर 1.5 डिकेड के बाद भी हम इसको नहीं बदलते हैं। जो जरूरत है वो आज की वो ये है कि जो हमारे आउटडेटेड और ऑब्सोलीट कॉम्प्लेक्सिटीज है, प्रॉब्लम्स है, या जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ऐसे रूल्स, ऐसे ऑर्डिनेंसेस, ऐसे जो हमारे कैलेंडर्स हम बनाते हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हम फ्रेम करते हैं, उनको बाहर कर दिया जाए और नए बनाए जाए। इवन पुराने के अंदर तो हम ये देखते हैं कि हॉस्टल के फंड्स, स्टूडेंट्स के फंड्स, वेलफेयर के फंड्स, ये सारी चीजें भी बहुत कम है, जिससे उनका कुछ नहीं हो पाता है। तो वी नीड टू कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम वेरी फ्रिक्वेंटली फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हमारे बनते हैं उनको हम दूर कर सकते हैं, ऐसे चैलेंजेस को हम दूर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फैकल्टी की बहुत तरह की शॉर्टेजेस है। इवन जो यूजीसी की खुद की रिपोर्ट थी, उसमें यूजीसी ने खुद इस बात को एडमिट किया है कि 21% ऑफ द पोजीशंस आर लाइंग वेकेंट इन द state institutions and 31% in the central institution. So that faculty shortage is very huge. और एक कॉम्पिटिटिव स्टाफ का ना होना एक और बहुत बड़ी समस्या है, कि जो स्टाफ है टू सप्लीमेंट द टीचिंग वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं है। यहाँ पर भी जरूरत है, जैसे बैंक्स के अंदर जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था और बैंक्स के अंदर जो है वो कंप्यूटराइजेशन किया गया था, और तब हर एक के लिए ये मैंडेटरी कर दिया था, इधर यू लर्न इट और यू टेक द VRS और यू लीव इट। तो चॉइस नहीं दी थी एम्प्लॉइज को कि करना है या नहीं करना। बहुत साल तक चॉइस चली, फिर चॉइस में कोई नहीं आया, बहुत सारी चीजें वहीं की वहीं रह गई। इवन जो सिस्टम परचेज कर रखे थे वो भी पुराने हो गए। तो बाद में जब फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन हुई तो एवरीबडी लर्न इट। इसी तरह का एक फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी टेक्नोलॉजी वाइज, कॉम्पिटिटिव वाइज, चेंजेस के हिसाब से चेंजेस को लाना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो गई है। अब आजकल हमें जरूरत नहीं पड़ती है कंप्यूटर टाइपिस्ट की, एवरीबडी टाइप ऑफ देयर ओन, हर कोई अपनी अपनी टाइपिंग कर लेता है। तो यहाँ पर जरूरत है कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी की, वो आनी बहुत जरूरी है। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टाफ जो है या फिर इवन टीचर्स जो है वो बोल देते हैं जी हमें कंप्यूटर नहीं आता, हम कुछ नहीं जानते इस चीज को करना। तो ऐसी तरह के चैलेंजेस को meet out karna, to work with that kind of challenges is very important, and we have to look for the future direction. So we have to strengthen that kind of the things. इसलिए ये पुरानी जो obsolete चीजें हैं इसको दूर करना और नए जो रिफॉर्म्स है इसको इंट्रोड्यूस करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एकेडमिक लीडर के लिए, पर ये करना उसे सीखना चाहिए, करना उसे आना चाहिए, इस तरह की स्किल्स उसे डेवलप करनी चाहिए। तभी एक अच्छा एकेडमिक लीडर जो है वो मिलता है किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को। देन गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है वो होता है ट्रांसपेरेंसी। इस ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हम बहुत सालों से बात करते चले जा रहे हैं। अब बहुत सारी चीजें टू कीप देम, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, एडमिशंस ऑनलाइन हो गए हैं, स्कॉलरशिप ऑनलाइन हो गई है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो गए हैं। इस NEP के अंदर ABC आया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आया है, डिजी लॉकर की बात हो रही है। सो बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जो अब नई आ रही हैं और नए के हिसाब से चल रही हैं, और इन सारी चीजों को, इन प्रावधान को इंक्लूड करना, इन सारी चीजों को अडेप्ट करना, इन सारी चीजों को अडेप्टेशन करवाना by all the people working in that institution is the responsibility of the leader. आप देख रहे होंगे जब तक लीडर प्रोएक्टिव नहीं होता कोई चेंज पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी डिटरमिन करना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर चीजें रह गई हैं, कहाँ लिंगर ऑन हो रही है, कहाँ पे खराब हो रही है, और जहां खराब हो रही है उस पर्सन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना ये बहुत जरूरी है। पर बहुत तरह के चैलेंजेस हैं हमारे आज भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वो है बायसनेस की, फेवरेटिज्म की। जो मुझे पसंद है उसके तो 100 खून भी माफ है, पर जो मुझे पसंद नहीं उसकी एक छोटी सी मिस्टेक के ऊपर भी हम उसे सूली पे टांग देते हैं। तो इस तरह की जो नॉन ट्रांसपेरेंट अप्रोच होती है, दैट क्रिएट अ रॉन्ग कल्चर, अ रॉन्ग एनवायरनमेंट एंड अ रॉन्ग एम्बियंस।
एंड दैट ऑल्सो क्रिएट द ग्रजेस बिटवीन द पीपल जो वहां पे वर्किंग होते हैं, उनके आपस के बीच में भी ग्रजेस आ जाते हैं। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी होना ये बहुत जरूरी है। अगर एक लीडर ट्रांसपेरेंसी रखेगा तो इस तरह की चीजें खत्म हो जाती हैं और एक टीम वर्क निकल कर आता है, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर कि वो इस तरह से करे। तो इसके अलावा ये बहुत जरूरी हो गया है आज की डेट में कि वी शुड इंटीग्रेट द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन बहुत जरूरी हो गया है कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट सभी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करने के लिए भी और एकेडमिक टास्क करने के लिए भी ये जरूरी है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी लीडर की कि वो इन सारी चीजों को उसके अंदर लागू करे। जस्ट अ सेकेंड। Not getting wise. Excuse me, there was a call. So we were discussing about the technology, the integration of technology. तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि हम बच्चों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के साथ जोड़ रहे हैं, उस पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, हम बच्चों का डिजी लॉकर की बात कर रहे हैं, इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स को कवर करने के लिए, गवर्नेंस को इफेक्टिव करने के लिए, मोर ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन टास्क को भी ऑनलाइन करना, इंटीग्रेट करना टेक्नोलॉजी के साथ बहुत जरूरी है कि जितना भी फाइल वर्क हो, फाइल सिस्टम हो, वो एक MIS पोर्टल के ऊपर हो, मतलब एक MIS सिस्टम हो उसका, जिसके अंदर उसकी ट्रांसपेरेंसी आ सके, उस सीट की अकाउंटेबिलिटी बन सके, एक बेहतर गवर्नेंस हो सके। और इसके अलावा ये भी जरूरी है कि आजकल जिस तरह से हमने एडमिशंस तो ऑनलाइन कर लिए हैं, रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन कर लिए हैं, पर इसके आगे के जितने प्रोसेसेस हैं वो भी स्ट्रीमलाइन करने बहुत जरूरी है। खास तौर पे जब हम इस एकेडमिक जो हम बदलाव जो हम कह रहे हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आने वाला है, उसके अंदर ये बहुत जरूरी है कि जो चेंजेस इसके अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हम करते हैं, वो हमसे जो हम कह रहे हैं कि हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हो जाए और बच्चों के पास पूरा बफे हो जाए कि वो कुछ भी खा सकते हैं, जैसे है ना, वो कुछ भी ले सकते हैं और वो कुछ भी पढ़ सकते हैं। एक बफे की तरह हमने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ऑफर करने के लिए बोला गया है। तो इसके लिए जरूरत है कि हम इसके अंदर अपने जो एजुकेशन जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स है उसके अंदर भी इंटीग्रेट करें टेक्नोलॉजी को। इवन क्लासरूम असेसमेंट्स, असाइनमेंट्स, टीचिंग, इसके अंदर भी इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। दैट विल आल्सो गिव अस मोर ट्रांसपेरेंसी। मतलब
मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी को हमें अपने वर्क को ईज आउट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अपने ऊपर हावी करने के लिए नहीं करना चाहिए. There should not be a substitution of classroom teaching with the online teaching until unless it is very much, very important, or we do not have any other way of teaching to our students. एक बच्चे के पास भी अगर कोई ऑप्शन ना हो कि वो ऑनलाइन पढ़े, तब तक उसे ऑनलाइन में ना जाकर ऑफलाइन मोड में, एक रेगुलर मोड के अंदर पढ़ना में बहुत डिफरेंस होता है. पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन दैट रेगुलर मोड ऑफ टीचिंग, उसके अंदर इंटीग्रेशन किया जा सकता है. दैट विल ईज आउट लॉट ऑफ वर्क फॉर बहुत सारी चीजें हमारी ईज आउट हो जाएंगी उससे. देन वी हैव टू सी कि किस तरह से हमने अपने डिसीजंस लेने हैं, डेटा ड्रिवन हो, किस तरह से हम एक ऐसा कल्चर इंट्रोड्यूस कर सके जहाँ पे कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट हो, इनोवेशन हो, क्रिएटिविटी हो. और किस सिर्फ क्रिएटिविटी ये हमें अपने स्टूडेंट्स के अंदर की जरूरत नहीं है, क्रिएटिविटी टीचर्स के अंदर भी होनी बहुत जरूरी है. और ये एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने जो टीचिंग स्टाफ है या जो अपना स्टाफ है, चाहे वो टीचिंग है चाहे वो नॉन टीचिंग है, उसकी क्रिएटिविटी को कैसे फॉस्टर कर सकते हैं. जब इनकी क्रिएटिविटी फॉस्टर होगी तो ऑटोमेटिकली दे विल ट्रांसफर दैट क्रिएटिविटी टू द स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी है वो इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर होगी, एंड दैट विल गिव अ नेम टू द इंस्टीट्यूशन. तो ये बहुत जरूरी है, और ये रोल जो है एक एकेडमिक लीडर का एज अ लीडर बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल है. तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि वो इस तरह के जो डिसीजंस है जो फ्यूचर की तरफ ओरिएंटेड है, जो कि एक इंस्टीट्यूशन को बेहतरीन बना सकते हैं. ये हमने चैलेंजेस अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत फेस किए हैं ओवर द पास्ट years. We have seen that there is no fostering of creativity in our academic institution. और जो क्रिएटिविटी को फॉस्टर करने की जहां जरूरत पड़ती है, इनोवेशन को फॉस्टर करने की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारे लेग पुलर्स होते हैं, बहुत तरह के राइडर्स हम लगा देते हैं. कोई भी बदलाव को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो बदलाव को एक्सेप्टेबल बनाने का कल्चर इंस्टिल करना, ये एक एकेडमिक लीडर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर टीचर को, नॉट ओनली टीचर को, बट जितने भी प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं या जो इस तरह के लीडर्स के रोल प्ले कर रहे हैं, दे नीड टू बी ट्रेन्ड. दे नीड टू बी ट्रेन्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, चाहे वो रेगुलेटरी एस्पेक्ट हो. देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर, मेरा जो मानना है वो ये है कि कल तक हम स्टूडेंट थे, आज हम टीचर हो जाते हैं अचानक से. कि कल तक वी जस्ट कंप्लीटेड आवर पीजी और वी डिड आवर डॉक्टरेट, एंड टुडे इफ वी आर गेटिंग अ जॉब, ऑल ऑफ अ सडन एक स्टूडेंट से एक शिक्षक बन जाता है कोई. पर माइंडसेट को सेट होने में, बच्चों की साइकोलॉजी को समझने में, उनको पढ़ाने की पेडागोजीज को समझने में और इनोवेट करने में टाइम लगता है. और देयर इज नो ट्रेनिंग गिवन टू द टीचर्स. केवल एक ही ऐसा प्रोफेशन है टीचिंग का जहां पर कोई ज्वाइनिंग से पहले कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती. ना तो टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ना ही लीडर बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है. अब हम में से ही कोई किसी पोजीशन पे एज अ मैटर ऑफ रोटेशन, एज अ मैटर ऑफ सीनियोरिटी और एज अ मैटर ऑफ सिलेक्शन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास आ जाएगी. पर उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, उसके लिए फिर कोई ट्रेनिंग नहीं है. बिकॉज एवरी रोल हैज अ डिफरेंट बेंड ऑफ माइंड. वो बिल्कुल अलग तरह की सोच का आता है. आप जब टेबल के उस तरफ होते हैं तो सोच अलग होती है. It is very easy to criticize, but when you come onto the other side of the table, you understand the limitation. So that is why हम बहुत सारी एक्टिविटीज में, हमारे यहाँ मैनेजमेंट में तो अक्सर रहता है कि हम रोल प्लेइंग कराते हैं कि अच्छा you become this and now you take the decision. So we try and understand each other in a very good way, how to understand the limitation of the other. ये रोल प्लेइंग एक्टिविटीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. पर इन सारी चीजों के लिए ये जरूरी बनता है कि सबको ट्रेनिंग दी जाए, कि इस तरह के स्किल्स उनके डेवलप किए जाएं ओवर द पैसेज ऑफ टाइम. अगर कल को, जैसे सपोज करिए, अगर अभी आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो 6 साल का है, 7 साल का है, कुछ टाइम के बाद आप हेड बन जाएंगे, आप डीन हो जाएंगे, आप प्रिंसिपल हो जाएंगे, आप रजिस्ट्रार हो जाएंगे, या फिर आप वाइस चांसलर हो जाएंगे कल को. सो यू हैव अ लॉन्ग जर्नी टू ट्रेवल. सो दैट काइंड ऑफ स्किल जो कि हम एज अ टीम मेंबर में थे,
और आज हम एज अ लीडर की जो पोजीशन में एज्यूम करते हैं उनमें बहुत डिफरेंस आता है. तो दैट स्किल्स नीड टू बी डेवलप्ड एंड दैट नीड्स टू बी उसको विकसित करना भी चाहिए, उसको हॉर्न भी करते रहना बहुत जरूरी हो जाता है टू बिकम अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर. और जहां पर भी अच्छी लीडरशिप नहीं होती है वहां आप देखिएगा पुअर गवर्नेंस होगी और पुअर ही वहां पे मैनेजमेंट होगी. एंड दैट obviously that person will not be a good leader at all. तो इसीलिए ये सब चीजें करने के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के क्रिएट किए जाएं. आप देखिए जो कैलम था उसके थ्रू एएमयू ने बहुत तरह के लीडरशिप प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया था. वो यही करते थे, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए हैं और जिसके अंदर जो डिफरेंट कैपेसिटीज के अंदर लोग थे, जैसे कि हेड्स की कैपेसिटी पे है या एस्पायरिंग लीडर्स की जो कैपेसिटी में है, उन सब की ट्रेनिंग हो, उनको सबको टेलर किया जाए. देन इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसके अंदर हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो हर इंस्टीट्यूशन में है. जहां पर भी ह्यूमन रिसोर्स होगा वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहां पर टीम होगा. टीम में किस तरह से टीम बिल्ड करनी चाहिए, टीम को किस तरह से काम करना होता है, टीम को किस तरह से वो मैनेज करना होता है, किस तरह से फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए इंस्टीट्यूशन पे, किस तरह से डिपार्टमेंट के फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए, प्लानिंग किस तरह से स्ट्रेटेजिकली करनी चाहिए, इसके ऊपर उनके लीडरशिप प्रोग्राम्स होने चाहिए. ये भी एक बहुत जरूरत है कि हम अपनी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल बनाकर रखें. और सब इसके लिए ये भी एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके स्किल्स के अंदर आता है कि वो सभी स्टेक होल्डर्स को किस तरह से कंट्रीब्यूट करा सकता है टुवर्ड्स द डिसीजन मेकिंग, टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द इंस्टीट्यूशन. ये चीजें भी बहुत जरूरत है कि हर स्टेक होल्डर का अपना रोल जो है वो इसके अंदर आए, in reviewing of the policies, in framing out the policies, in making up of the setting up of all the procedures और best practices को वो जो है वो लागू करें. एक regulatory environment जो है, एक automatic environment जिसे हम बोलते हैं, इस तरह का evolve करना जो है ये जरूरत है. इसके साथ साथ एक बहुत important चीज है जो कि हम सब लोग एज एन इंडिविजुअल फील भी करते हैं और मानते भी हैं, और वो है टू introduce the ethical conduct among the people, among all the teachers, all the staff as well as the student. बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ साथ ये भी बहुत जरूरत है कि हम एक एथिकल कंडक्ट को वहां पे कर सकें, जिसके अंदर चाहे वो गवर्निंग बॉडीज हैं उनके बीच का हो, चाहे वो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर हो, और चाहे वो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर हो, और वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके अंदर हो. तो एक फॉस्टरिंग ऑफ द एथिकल कंडक्ट एंड द एनवायरनमेंट ऑफ एनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इसके साथ साथ एक चीज और जो मेरे को ऐसा लगता है जो कि एक किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर होनी चाहिए, और आज के जो पर्टिकुलरली 21st सेंचुरी के जो स्किल्स जो हम एक एकेडमिक लीडर में होने चाहिए, वो है कि वन शुड गिव द ऑटोनॉमी, कि ऑटोनॉमी को एनहांस करना, एकेडमिक फ्रीडम को डेवलप करना. जितनी ज्यादा ऑटोनॉमी होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास, उतनी ही बेहतरीन डिसीजन मेकिंग हो सकती है, उतना ही बेहतरीन वो इंस्टीट्यूशन बन सकता है. बहुत ज्यादा जहां पर एक लंबी हायरार्की हो और टाइम कंज्यूमिंग हायरार्की हो, तो वहां पर डिसीजंस बहुत डिले हो जाते हैं, और वो डिसीजंस भी उतने ही बेकार होते हैं जब वो होते हैं, जैसे कि ना हुए के बराबर या खराब हुए के बराबर. तो जब लंबे समय लगते हैं किसी भी डिसीजन को, जिसको आज लेना था अगर आप उसको 1 महीने बाद ले रहे हैं, जिसको 1 महीने के अंदर लेना था उसे 1 साल तक नहीं लिया जा रहा, जिसे इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ करना था वो कोर्ट में चला गया फॉर द ईयर आफ्टर द इयर्स. तो ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्सिटीज और कॉम्प्लिकेशंस को इंक्रीज करते हैं. तो इसको रिड्यूस करने के लिए ये बहुत जरूरत है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी दी जाए. और ऑटोनॉमी देने का सिर्फ तभी फायदा होता है जब लीडर के पास एक गुड एबिलिटी हो ऑफ मेकिंग द डिसीजंस. एक डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो अगर उसके अंदर अच्छी नहीं है तो ऑटोनॉमी बहुत नुकसान करती है किसी भी इंस्टीट्यूशन को.
तो इसीलिए ऑटोनॉमी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक एकेडमिक लीडर की बनती है, वो बनती है ऑफ टेकिंग अ गुड डिसीजन, एटलीस्ट टेकिंग। बहुत सारी जगह तो ऐसा होता है, हम देखते हैं खास तौर पे टेन्योर बेस्ड जॉब के अंदर, कि कुछ जो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं वो लोग लेते ही नहीं है, लिंगर ऑन करते हैं। हमारी पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस है उनके अंदर एक बड़ी खासियत है, डिले 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 डिले, एज मच एज पॉसिबल डिले, ताकि हमारा टाइम निकल जाए। तो वो क्या होता है, वो डिले होते 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 वो एक नासूर जैसे होता है ना, उस तरह से बन जाता है। अब वो एक कैंसर को अगर हम जन्म दे देते हैं, एक अगर हम उस सिचुएशन को कैंसरस बना ही रहे हैं ध्यान ना देकर, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, जैसे कैंसर शरीर भर में फैल जाता है, ऐसा ही वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में फैल जाता है, और वहां के कल्चर को, वहां के एनवायरनमेंट को, वहां की टीम स्पिरिट को, वहां की ग्रोथ को वो खाना शुरू कर देता है, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं ऐसे केसेस में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that with this autonomy, the decision making ability of the leaders should be very high. It should be very वो ability strong होनी बहुत जरूरी है किसी भी जगह पे। एकेडमिक फ्रीडम मिलनी सभी टीचर्स के लिए, सभी के लिए बहुत जरूरत है, वो चाहे स्टूडेंट्स की हो, वो चाहे टीचर्स की हो। तो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए, इंटेलेक्चुअल्स इंटेलेक्ट को प्रमोट करने के लिए, डाइवर्सिटी को प्रॉस्पर करने के लिए ये जरूरत है कि हम एकेडमिक फ्रीडम दें। पर हर फ्रीडम, जैसे बोलते हैं ना कि फ्रीडम इतनी भी नहीं कि वन शुड लिबरेट एंड शुड गो बियॉन्ड दिस थिंग। बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस ऐसे हो जाते हैं जहां पर एकेडमिक फ्रीडम के नाम पर कुछ भी करते हैं, कि हमारी एकेडमिक फ्रीडम है। बट इसीलिए ये जरूरी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से लीडर की आती है कि एथिकल कंडक्ट और एथिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए। अदरवाइज आप फ्रीडम की कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते, ना ही ऑटोनॉमी की कोई डेफिनेशन दे सकते हैं। पर ऑटोनॉमी के अंदर केवल रूल्स ऐसे हो सकते हैं कि वो आपको कितने परसेंटेज ऑफ ऑटोनॉमी प्रोवाइड करती है। इसी तरह से फ्रीडम का भी जो नाजायज फायदा है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने बहुत उठाया भी है, और उसके आज हम असर भी देख रहे हैं कि हमारा जो यूथ है वो जो है वो इनएबिलिटी, अनएम्प्लॉयबल भी बहुत बना है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। जहां पर बेहतरीन, जहां अच्छा है वहां उसे बेहतरीन करने की जरूरत है, जहां कम है उसे बढ़ाने की जरूरत है। एग्जिस्ट तो हर जगह करता है, पर जहां कम है वहां उसे बढ़ाना बहुत जरूरत है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस एनईपी के अंदर पर्टिकुलरली डिस्कस हो रही है, और अभी जैसे डॉक्टर फायजा भी मुझे जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे यहाँ के कोऑर्डिनेटर के साथ, अजहर जी के साथ, तो उनका भी अपना एरिया बनता है, वो है स्टूडेंट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। तो जब हम डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी के ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा थ्रस्ट दिया गया है इस एनईपी के अंदर, ये भी एक लीडरशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो भी बहुत जरूरी है कि वो एक ऐसे अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स को प्रमोट करे, उनको उनको सामने लेकर आए, उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाई जाए। ये भी एक जरूरत है लीडर की। देखिए, ये एक लीडर का ही रोल होता है। अभी तक हम ये देखते थे कि जितने भी हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के एरियाज हैं, अगर देखो रेलवे स्टेशन पे अगर आप चले जाएं, तो रेलवेज में अलीगढ़ का तो अगर आप बात करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा जंक्शन है। तो जहाँ जंक्शंस होते हैं वहां पे कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कोई एक सिंगल प्लेटफॉर्म तो होता नहीं। जो डिसेबल्ड लोग हैं वो वहां पर कैसे जाएं, उनके लिए ना तो बेल्ट्स लगी हुई हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जैसे पहुंच सके, ना ही लिफ्ट्स लगी हुई है, अब लगनी शुरू हुई है। रैम्प्स भी बहुत जगह पे हमें देखने को नहीं मिलते थे, किसी जगह है किसी जगह नहीं है। तो वी हैव अ वेरी बिग ग्रुप जिनको हमने एड्रेस ही नहीं किया। दे आर ऑल्सो द प्रायोरिटीज को जिनकी चीजें आने लग गई है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो है इस तरह से अपने इंस्टीट्यूट के अंदर भी इसी तरह से एकेडमिक लीडर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि डाइवर्सिटी को हम किस तरह से एनरिच कर सकते हैं। तो जो जैसे आप देखिए हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको अगर हम देखें, जैसे सपोज करिए कि ब्लाइंड बच्चे ही हो, तो अगर वो हम उनको ये बोले कि आप सारी बुक्स को अपने घर के अंदर इस तरह की सॉफ्टवेयर्स लीजिए, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स खरीदिए कि आपकी सारी बुक्स जो है वो ब्रेल के थ्रू चलती हो। आजकल तो बहुत सारी तरह की टेक्निक्स आ गई हैं जिसके अंदर वो उनको हेल्पफुल हो सकती है, जो कि अनअफोर्डेबल हो सकती है बाय अ सिंगल पर्सन, but if it is purchased by an institution, it can benefit number of people, it can benefit number of students, those who are suffering that kind of disabilities. तो अगर हम उस तरह की चीजों को परचेज करके उस तरह की टेक्नोलॉजिकल चीजों को या फिर उस तरह की जो आवश्यकताएं हैं एक इंक्लूसिव ग्रुप के लिए, तो वो चीजें एड्रेस हम कर सकते हैं। ये सोच होनी चाहिए एक एकेडमिक लीडर के अंदर। ये बहुत जरूरी है कि एक एकेडमिक लीडर के अंदर इस तरह की सेंसिटिविटी हो, इस तरह की रिस्पेक्ट, जो आज हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की। एक और बहुत जरूरत है, why we need to really respect the diversity is that we are becoming global and we are the largest workforce. हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बाहर जाकर भी बहुत सारा काम करेगी, और बाहर से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, we are thinking that the international students will come to India in the times to come now. तो वो बहुत जरूरी है कि हम इन सारी चीजों को अपने उसमें ध्यान रखें, अपने इस एकेडमिक हम इस चीज को जी डॉक्टर रहमान जी, आपका अनम्यूट हो गया है। इफ यू हैव अ क्वेश्चन तो प्लीज पूछिए, नहीं तो म्यूट कर लीजिए। तो इस तरह का सपोर्टिव एनवायरनमेंट, इस तरह से रिस्पेक्टिंग ऑफ डाइवर्सिटी, विच नॉट ओनली रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी अमंग द ग्रुप्स इन द इंस्टीट्यूशन, बट we have to create the students who can respect the diversity in their own country as well as with the other countries. उनकी भी वहाँ के कास्ट, कल्चर, क्रीड, रीजन, रिलीजन को वो डाइवर्सिटी जो है वो रिस्पेक्ट कर सके, इस तरह का एक एम्बियंस क्रिएट किया जाए। और ये क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एकेडमिक लीडर के ऊपर होती है। एक चीज जिसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, जिसको बड़ी लायबिलिटी समझा जाता है, और वो होता है ट्रेनिंग ऑफ द फैकल्टी एंड ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ। देखिए, अगर इस इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है तो ट्रेनिंग के ऊपर बहुत तवज्जो दिया जा रहा है, यूजीसी ने बहुत जोर दिया है, इसलिए आप सब लोग यहाँ हैं। अगर यूजीसी ने ये जोर नहीं दिया होता तो कोई भी यहाँ नहीं होता। हम कितने भी डॉक्टर फायजा कितने भी एफर्ट करते, कोई भी एमएमटीटीसी कितना भी एफर्ट करता, इतने सारे टीचर्स इतने सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाने के लिए इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यूजीसी हैज टेकन एन इनिशिएटिव ऑफ डूइंग ऑल दोस थिंग्स। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी हम नए चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं या इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर ट्रेन किया जाए। ये तो केवल फैकल्टी की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। आई थिंक दैट द ट्रेनिंग टू द नॉन टीचिंग स्टाफ is also equally important for the efficient implementation of this NEP. तो ये भी बहुत जरूरी है। And then we have to invest. We have to invest in our staff. हमें इस ट्रेनिंग को बोझ के तौर पर नहीं, ना तो खुद लेना है, और ना ही जिस तरह से जब टीचर्स को रिलीव करने की बात आती है कि दे हैव टू अटेंड द फैकल्टी इंडक्शन, दे हैव टू अटेंड द ओरिएंटेशन, दे हैव टू अटेंड द रिफ्रेशर कोर्सेज, दे हैव टू अटेंड द एनईपी प्रोग्राम्स, तब एक तरह से बोझ के तौर पे दिया जाता है कि आप इंस्टीट्यूशन आकर इसे करेंगे, साथ में ये काम भी करेंगे, ये ड्यूटी भी करेंगे, एज इफ इट इज ओनली फॉर द टेकिंग ऑफ द सर्टिफिकेट। बट जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वी हैव टू बी मोर सीरियस अबाउट इट। वी हैव टू इन्वेस्ट ऑन द फैकल्टीज। मुझे ऐसा लगता है इंस्टीट्यूशन को, टीचर्स को ट्रेन करने में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन अपने ट्रेनिंग, अपने फैकल्टी को डेवलप करने में
उसको प्रोफेशनली ग्रो करने में हेल्प करता है, जो उसकी रिसर्च को प्रमोट करने में हेल्प करता है, जो उसकी एबिलिटीज को एनहांस करने में प्रमोट करता है, जो उसके ट्रेनिंग के अंदर उसको डेवलप करने में एनहांस करता है, those teachers become an asset for the institution. उनकी रिकग्निशन, उनके रिवॉर्ड्स, उनकी जो एक्सीलेंस लेकर आती है, जो कि टीचिंग, रिसर्च और उनकी सर्विसेज में उनके दैट ब्रिंग्स, ये सारी चीजें जो एक्सीलेंस उनके थ्रू आती है, उसके थ्रू एक इंस्टीट्यूशन जो है वो ग्रो करता है. इंस्टीट्यूशन ऑल्सो मूव टूवर्ड्स द एक्सीलेंस, द फैकल्टी विल मूव टूवर्ड्स द एक्सीलेंस. तो इसलिए all these things should not be considered as a liability or a time pass or only a certificate generation programs, but it should rather be taken as the investment on the staff. ये investment on teachers इसको consider करना चाहिए. जब हम investment के तौर पर, यहाँ पर दोनों का ही mindset बदलना बहुत जरूरी है. जो institution जो leader के तौर पर है, जिसने उसको attend करवाना है और जिन्होंने attend करना है, दोनों को ही ये चीज समझनी बहुत जरूरी आ जाती है. देन जो हमारे इवैल्यूएशन है और जो इम्प्रूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये भी आगे कॉन्स्टेंटली हमें इसके आगे मूव करना है, इसके अंदर चेंजेस लेकर आने हैं. जो अब चेंजेस हमारे लिए आ रहे हैं 21st सेंचुरी में, वो ये है कि वी हैव टू एड्रेस द वेरियस चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी. दैट इज द ग्लोबलाइजेशन. एक तो जिसके ऊपर हमने बात ही करी है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो अलग तरह के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही है. व्हेन द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, वी हैव टू एड्रेस दोज ग्लोबल इश्यूज, एंड हाउ वी हैव टू ऑफर दैट global issues, how we have to meet out the challenges of that globalization, it depends totally upon the vision of the leader, how we are taking, how we are looking at this, whether it is coming as a challenge to us or whether it is coming as an opportunity to us. We have to find out, we have to analyze, and we have to take the decisions accordingly. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है 21st सेंचुरी का, जिसके हिसाब से हमें अपनी जो एजुकेशन है उसको एड्रेस करना है, उसको आगे बढ़ाना है. दूसरा जो एक 21st सेंचुरी का एक और चैलेंज है बहुत बड़ा, जिसको सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने एड्रेस करना है, वो है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन. इसको एनकरेज करने की बहुत जरूरत है. ये जरूरत है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट की तरफ निकले, बहुत सारे डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट करें, और किस तरह से उसके एप्लीकेशन एरियाज हो सकते हैं, उसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक कोलैबोरेशंस के थ्रू हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैबोरेशंस के थ्रू हो, चाहे वो टेक्निकल कोलैबोरेशंस के थ्रू हो, वो नेशनल कोलैबोरेशंस हो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो. ये बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से इसको एक दिशा देते हैं. ये हमें 21st सेंचुरी में करना बहुत जरूरत है. एक और जो हमारा चैलेंज है जिसको मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, वो है डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी. इसको भी एड्रेस करना बहुत जरूरत है हमारी. एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें चाहिए कि वी शुड हैव, वी शुड डेवलप अवर कम्युनिकेशन स्किल्स. बहुत जरूरत है किसी भी एकेडमिक लीडर को कि वो एक अच्छा लीडर हो, वो अच्छा कम्युनिकेटर हो. ये बहुत जरूरत है उसके लिए, क्योंकि अगर वो एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होगा और वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो बहुत सारी जो हमारे मतलब बहुत सारा जो वो सोचता है या वो अपना एक विजन रखता है, वो उस गोल को, उस विजन को कभी फुलफिल नहीं कर पाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर एबल टू कन्विंस, टू मेक the others as a part of our team, to tell them what we visualize for the future, where we want to go, what our goals are. ये अगर सभी के साथ क्लियर हो और उन तक कम्युनिकेटेड हो, तो ये बहुत जरूरी है कि एक लीडर ये सारी चीजों को कम्युनिकेशन कर सके. और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि उसके अंदर एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हो और वो एक रोल मॉडल की तरह भी एक्ट कर सके. तो हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं टू टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम. अगर हमारे यहाँ पर कोई अच्छा लीडर होता है, तो everybody, all the team people will look at that leader to take the inspiration, to
take him or her as a role model. हम उसके behavior को analyze करेंगे. वो teacher ही नहीं, वो students भी analyze करते हैं. तो that is very important कि अगर हम कहीं पे leadership roles assume करते हैं, तो we should become a role model. That will also help us and guide us. We should be very smart in setting up of our goals. Like SMART stands for be specific, setting the specific goals which are measurable, achievable, relevant and are time bound. So that is SMART. ये करना बहुत जरूरी है. ये भी एक अच्छे लीडर के अंदर एक इफेक्टिव लीडर का एक गुण है, एक स्किल है. We have to prepare our lessons before the time. हमने अगर कोई काम करना है, जैसे सपोज करिए अगर टेन्योर बेस्ड भी पोजीशन है एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एज अ डीन ऑफ द डिपार्टमेंट और इन एनी कैपेसिटी, वी शैल प्लान कि 1 साल में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, 3 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है. तो वी शुड प्लान आवर लेसन्स वेल बिफोर. जैसे हम क्लासरूम्स के लेसन प्रिपेयर करते हैं ना कि इस सेमेस्टर में हम इस महीने क्या पढ़ाएंगे, अगले महीने कौन सी एक्टिविटीज कराएंगे, कब प्रैक्टिकल होंगे, कब थ्योरी होगी और कैसे हम फील्ड विजिट कब कब होगा और उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट्स कैसे करेंगे. तो हर चीज प्लान आउट करते हैं. इसी तरह से हम एज एक इफेक्टिव लीडर को भी ये सारी चीजें प्लान करनी चाहिए. देन कमिटमेंट टू द लाइफ लॉन्ग लर्निंग. जो अब 21st सेंचुरी है, ये 21st सेंचुरी के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर जो हमारे स्किल्स हैं, दैट रियली नीड टू बी एवर इवॉल्विंग. एवर इवॉल्विंग होने बहुत जरूरी है. जो लर्निंग है, बिकॉज अब जो आने वाला दौर है, आप इस चीज को समझ ही सकते हैं. एआई की आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं. जब हम एआई की बात कर रहे हैं तो बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं. टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ऑब्सोलीट होती चली जा रही है. नई नई इनोवेशंस आती चली जा रही हैं. तो जैसे जैसे नई नई इनोवेशंस आती चली जाएंगी, तो हमें क्या चाहिए कि हम एक ऐसे कल्चर को प्रोड्यूस करें इन अवर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जहां पर लर्निंग इज अ कांस्टेंट फेज. वो एक मतलब नए से नए, आगे से आगे जो चेंजेस है उसको हम एक्सेप्ट करते चले और बदलाव लाते चले जाएं और उसको सीखते चले जाएं. ये बहुत जरूरी है. इसलिए ये सभी टीचर्स के लिए भी जरूरी है, सभी लीडर्स के लिए भी जरूरी है कि वी शुड इवॉल्व वी शुड कमिट टू अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. हम बच्चों को सारी वो टेक्नोलॉजीज नहीं सिखा सकते जो कि आने वाले फ्यूचर के अंदर होंगी, क्योंकि अभी वो इवोल्यूशन के प्रोसेस में होंगी और आने वाले समय में और भी इवॉल्व होंगी. पर जिस तरह का फास्ट इवोल्यूशन है, उन्हें जल्दी जल्दी उनको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सिखाते रहना उनके लिए कंपलसरी होगा. इसलिए ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करना जहां पर लर्निंग एनवायरनमेंट हमेशा के लिए स्टे करे, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो, ये बहुत जरूरी है. इसलिए सेल्फ असेसमेंट का भी एक जो पैरामीटर है वो बहुत जरूरी है टू एड्रेस इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करते रहने के लिए. सेल्फ असेसमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देखिए, जो हम सोचते हैं कि हमें अपने अंदर डेवलप करना चाहिए टू बिकम एन एकेडमिक गुड एकेडमिक लीडर इज टू हैव अ विजनरी थिंकिंग, envision what is there in the future and then develop that kind of a vision. Be an effective communicator, must have a very good decision making skills and foster the the environment of collaboration and must have an innovative mindset. ये होना बहुत जरूरी है to be a very successful leader. So that's from my side. If we have, I'm leaving this 5 minutes for the questions you have, or any doubts you have, or you want to add something to it. इसमें जो आपको ऐड करना है इसके लिए भी आप बता सकते हैं. The platform is open for all of you to ask question or to add something. जो भी आप कहना चाहें. Yes, any questions, any doubts, anything that you want to say? खाने के बाद का समय है ना, सब थक गए हैं, शाम हो गई है.
नहीं मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और इसकी कोई सवाल बनता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। Yeah, ma'am, it was very interesting. जी धन्यवाद गालिब जी, धन्यवाद राजीव जी। जी Thank you so much, ma'am. Wonderful Thank you, ma'am. session. थैंक यू चैतली जी। Thank you. जी शैलेंद्र जी, आप कुछ कह रहे हैं? अनम्यूट करिए प्लीज अपने आप को। जी You are very good communicator. Your communication is crystal clear. So that's why we don't have any questions. okay. And the things, whatever you have delivered is very useful for our institution and all this. So hope we will enhance our performance in our institutions. Thank you शैलेंद्र जी। Thank you. So I think there are no questions here, and it's also time. So I will take Thank your you so leave much, now. ma'am. Thank you. Ma'am, can we take your guidance for making some program and all this? If we wish to prepare any course and all this, can we communicate with you? Definitely. I'll put my mail ID in the chat box. Okay. Thank you very much. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot for your time. Thank you, sir.